Jai Hind guys, today we will discuss important current affairs of 27th August. In this video, we will cover some facts of current affair MCQ and some static GK. Which is important for your upcoming examination? Let's start. Additional charge of Governor of Nagaland. So recently, additional charge of governor has been appointed in Nagaland. That is Ajay Kumar Bhalla. He is also serving governor of Manipur. Ajay Kumar Bhalla has been appointed as the additional charge in Nagaland as a governor. Nuclear power plant in Russia caught fire due to Ukraine drone attack. So that plant name is Kursk nuclear power plant. So Ukraine attacks on Russia's nuclear power plant. That's name is Kursk nuclear power plant. International Big Cat Alliances country has officially joined. Name is Nepal. So Nepal became the country to join officially on International Big Cat Alliances. So International Big Cat Alliances is made for the protection of big cats, which is started by India. So its founder is India and Nepal has officially signed it. So it is established by Narendra Modi ji in 2023 in Mysuru, Karnataka. So its first president is Bhupendra Yadav. Its headquarters in New Delhi, India. So big cats included like tiger, lion, leopards, snow leopards, puma, jaguar and cheetah. These cats are included, and for that protection this alliances has been made. Next, first fully digitally literate state under the Digi Keralam project. So Kerala became the first fully digitally literate state under the Digi Keralam project. Important one. ISRO has announced that it will launch the heaviest rocket by 2035. What's the name of that rocket? That is Lunar Module Launch Vehicle. So ISRO has announced that it will launch the heaviest rocket by 2035. That name is LMLV, that is Lunar Module Launch Vehicle. Saurabh Ganguly has been appointed the coach of which team? That is Tigers of Kolkata. So you are thinking, what is Tigers of Kolkata? So it is an Indian State Premier League that played to participate the normal people or normal person to participate and grow career in cricket. So Tigers of Kolkata coach is Saurabh Ganguly. Kilauea volcano has erupted in Hawaii Island. Kilauea volcano. India's first removable solar panel project has been launched on Varanasi. So India's first removable solar panel project has been launched on Varanasi. Now we will cover some MCQs of today's current affairs. Which operation did the CISF initiative on August 26, 2025, marking the significant step towards gender parity in Indian security forces? That is, first all-women commando unit has stepped towards the gender parity in Indian security forces. So the CISF launched its first all-women commando unit. Which neighboring country joined the Indian-led International Big Cat Alliances IBCA in August 2025? Nepal. Nepal became the first country to join the Indian-led International Big Cat Alliances in August 2025. The Registrar General of India, RGI, works under which ministry? That is Ministry of Home Affairs. Which institution launched the report Rethinking Homestays Navigating the Police Pathways? That is Niti Aayog. Which became India's first second biggest tiger reserve after expansion? That is Sundarban Tigers Reserve. So guys, we will cover today's static GK. So today we will talk about Governor of India, Governor of States. So in Article 153, Governor of States, there shall be a governor of each state. One person can be the governor of two or more states. So 153 में क्या दिया है? 153 में दिया है कि भाई एक गवर्नर 2 स्टेट के भी रह सकता है और साथ साथ में इसकी गवर्नर के बारे में बताया गया है.
154 में बात की गई है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर। तो एग्जीक्यूटिव पावर की बात की गई है 154 में कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो गवर्नर के हैंड पे होगी, ठीक है। 155 में अपॉइंटमेंट की बात की, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 156 में इसका टर्म ऑफ ऑफिस की बात की, भाई 5 ईयर्स तक रह सकते हैं अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। 157 में क्वालिफिकेशन की बात करिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। क्वालिफिकेशन कैसा है उनका कि भाई अपना सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और 35 ईयर ओल्ड लगभग एज होनी चाहिए। 158 में बात करी गई है कंडीशन ऑफ ऑफिस की, कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर एंटाइटल्ड टू इमोल्यूमेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। कंडीशन ऑफ ऑफिस की बात करिए 158 में इमोल्यूमेंट्स के अधिकार होंगे और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। 159 में ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई है, गवर्नर टेक ओथ बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सीनियर मोस्ट जज। तो ओथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या सीनियर मोस्ट जज। डिस्चार्ज की बात करिए 160 आर्टिकल में दिए डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस, प्रेसिडेंट में टेक प्रोविजन इफ कंटीजेंसी अराइजेस, एग्जाम्पल वैकेंसी ऑफ द और इनएबिलिटी ऑफ गवर्नर। 161 की में बात की है पावर ऑफ पैर्डन की, पार्डन मतलब माफ़ी मांगना। इनके पास है कि भाई किसी को वो पार्डन मतलब माफ़ी दे सकते हैं। गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव्स, रेस्पाइट्स, रेमिशंस फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट्स लॉ एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस। तो डेथ सेंटेंस के अलावा बाकी सारी चीज़ों में माफ़ी दे सकते हैं, है ना। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर 162 में बात की गई है। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर की, जैसे कि गवर्नर एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड टू मैटर्स ऑन विच स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज। ओके, गवर्नर एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड्स टू मैटर्स ऑन विच स्टेट लेजिस्लेटर कैन मेक लॉज। 163 में बात की है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, गवर्नर एक्ट्स ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। तो गवर्नर किसके एडवाइस में काम करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, जो कि किससे हेड होगी, सीएम से, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से, सिवाय डिस्क्रिशनरी पावर को छोड़कर जो अलग से गवर्नर के पास दी रहती है। 164 में बात करी गई है अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड मिनिस्टर। तो कौन अपॉइंट करेगा सीएम और मिनिस्टर को, गवर्नर। एडवोकेट जनरल 165 में बात करिए एडवोकेट जनरल की, गवर्नर अपॉइंट एडवोकेट जनरल को भी अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 165। 166 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात करिए, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द स्टेट आर टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर। मतलब जो भी एक्शंस या जो भी डिसीजन लिए जाएंगे तो वो गवर्नर के नाम पे लिए जाएंगे अंडर द आर्टिकल 166। 167 में बात करिए ड्यूटीज ऑफ सीएम की, सीएम हैज टू कीप गवर्नर इन्फॉर्म्ड ऑफ स्टेट अफेयर्स एंड डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सारी जो ड्यूटीज़ होगी वो जो सीएम जो करेगा वो सारी चीज़ें किसको बताना है, गवर्नर को बताना है ना। 168 में बात करिए स्टेट लेजिस्लेचर की, लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, 1 हाउस यूनिकैमरल एंड 2 हाउसेस बाइकैमरल। मतलब लेजिस्लेचर में कौन होगा, गवर्नर इंक्लूड होगा और 1 हाउस मतलब जिसके इसमें अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है और जिस स्टेट में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो दोनों ही ऐड होगी। पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली इसके मेंबर्स होंगे स्टेट लेजिस्लेचर के। 174 में बात की गई है सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि सेशन की बात की गई है गवर्नर सम्मन्स प्रोड्यूस एंड डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे सेशंस को कौन सम्मन करेगा और कौन डिसॉल्व करेगा, ये हमारे गवर्नर ही कर पाएंगे। 175 में बात करिए एड्रेस बाय गवर्नर की, गवर्नर एड्रेस करेंगे असेंबली को और या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को और मैसेज सेंड करेंगे। स्पेशल एड्रेस में बात करिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्पेशल एड्रेस 176 में दिया है, जिसमें गवर्नर एड्रेस फर्स्ट सेशन, पहला सेशन एड्रेस करेंगे वो एवरी ईयर एंड फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। मतलब कि पहले न्यू ईयर में पहला सेशन कौन लेंगे, गवर्नर लेंगे, और अगर हमारी पार्टी चेंज हुई है या इन केस इलेक्शन हुए हैं तो हमारे गवर्नर ही पहले करेंगे। ओके, सो टू आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग असेंट टू बिल्स, गवर्नर ही असेंट करेंगे बिल को। लाइक गवर्नर कैन असेंट, विद होल्ड और रिटर्न द बिल और रिजर्व द बिल। मतलब वो असेंट कर सकते हैं या तो उसको होल्ड कर रख सकते हैं या तो रिजर्व कर सकते हैं, ये उन पर डिपेंड है अंडर आर्टिकल 200। सो ये भी इंपॉर्टेंट होता है असेंट ऑफ बिल्स। तो आर्टिकल 201 के अकॉर्डिंग बिल रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट, कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व होते हैं।
तो ये 201 के अकॉर्डिंग अपन गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है कि भाई उसको समझ नहीं आ रहा है तो प्रेसिडेंट के लिए वो रिजर्व रख सकता है. इफ़ अ बिल इज रिजर्व प्रेसिडेंट मे गिव असेंट और विदहोल्ड इट. 213 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑर्डिनेंस की बात कर रहा है. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात की गई है कि गवर्नर कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंस व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन द सेशन. तो ऑर्डिनेंस के बारे में हम कभी और बात करेंगे, बट ऑर्डिनेंस की पावर किसको दी गई है? हमारे गवर्नर जी को दी गई है. 272A के अकॉर्डिंग कंसल्टेशन फॉर जजेस. गवर्नर इज कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग हाई कोर्ट जजेस. प्रोसीजरल रूल, मतलब अगर वो हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट करते हैं तो वो कंसल्ट किससे लेंगे? प्रेसिडेंट से लेंगे. 239(2) के अकॉर्डिंग यूटीज़ में बात की गई है. प्रेसिडेंट में अपॉइंट गवर्नर ऑफ अ स्टेट एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ यूटीज़, मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं गवर्नर इन एडमिनिस्ट्रेटिव इन यूटीज़, यूटी में एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए. 356 में प्रेसिडेंट रूल्स की बात की गई है. बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 356. प्रेसिडेंट रूल में बात की गई है. गवर्नर रिपोर्ट फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड इन स्टेट. मतलब अगर गवर्नर बोल दे प्रेसिडेंट को कि भाई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी सही नहीं चल रही है या कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है गवर्नर, है ना. तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है यहाँ पे. 371A to 371J में स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करिए गवर्नर की. सर्टन गवर्नर्स हैव स्पेशल पावर इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स लाइक नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका एट्सेट्रा. तो कुछ अलग पावर दी गई है यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी के कुछ स्टेट्स को. So guys, we have completed important current affairs, static GK and also MCQ of current affair. I hope you like this video. So if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. And please share to your friends and please support our channel. Thank you.